Okay. So we'll just discuss these last two practice questions. I have shared the PDF of this PPT also with you. These are the extra questions which is added later on. Okay, so I just want to because now here in this particular example, in this two example, now we have a function of three variable, and what I already told you Sir, that yes. The screen screen share share करो. करा. Yes, okay, just 1 minute. Now I guess it is visible. Yeah, it is visible now. It is visible Yes. now. Yeah. Yes, sir. So these are the two practice questions that is that we have added. Okay, and these two example depend on function of three variable. ठीक है. एंड जो मेथड अभी आपने लास्ट लेक्चर में लर्न की थी अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके, दैट मेथड इज ओनली फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है. सो फंक्शन ऑफ फॉर अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल वन मोर मेथड इज देयर बट विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, लैग्रेंज मेथड of undetermined coefficient. Okay, that is for three variable, but we have to stick more on the function of two variable only. बट अगर आपको इसी मेथड से करने, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के ही मेथड से करने, ओके, हाउ यू अप्लाई दिस मेथड फॉर अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल. ठीक है. एट द एंड मैक्सिमम मिनिमा की जो लास्ट लेक्चर की जो मेथड थी उसके लिए कोई टाइटल नहीं है. ओके, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट दैट मेथड इज ओनली फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. जो भी हमने डिस्कस किया था आर यस टी आर टी माइनस स्क्वायर का जो भी कैलकुलेशन था, दैट इज ओनली फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. Then how you solve that or how you find the maxima and minima for a function of three variable. So let me take one example and then you can tell me a trick to solve that particular example. So this first question is like this: divide 24 in three parts, okay, such that, okay, so let me just write here, divide 24 in three parts. Let us assume these three parts to be x, y, z such that the continued product of the first square of the second and cube of the third is maximum. So what is my function? Anyone? What is my function? x plus y square plus z cube is equal to 0. Plus or product? X Into X into y y square. square into y z. cube. Okay. Z cube. Yes. So this is my function and I have to maximize this. Okay, I have to maximize this. So here you can see this function is so here this f is the function of three variable, है ना. So here this f is the function of three variable. So you cannot apply directly this method, this maxima minima method for this type of function. तो क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में? अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो फंक्शन आपके पास आ रहा है दैट फंक्शन कंटेन द थ्री वेरिएबल, बट जो आपकी मेथड थी दैट इज ओनली फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, बट स्टिल आपको टू वेरिएबल के लॉजिक से सॉल्व करना है. तो क्या कर सकते हो आप? एनी आइडिया? ऑब्वियसली We will keep the. हाँ, ऑब्वियसली आपको We will keep. हाँ हाँ बोलो बोलो. हम कौन सी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उस फंक्शन में रख देंगे. Okay, it means what? Anyhow, we have to convert this function into what? Function of two variable. आपको कैसे भी करके ये थ्री वेरिएबल का फंक्शन जो है उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. एंड टू डू दैट वी हैव वन मोर एक्स्ट्रा कंडीशन इन दिस क्वेश्चन. आपके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है वहाँ पे. ठीक है. दिस यू कैन से दिस इज योर एक्स्ट्रा कंडीशन. फंक्शन आपके पास है, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विद दिस कंडीशन. व्हाट इज दैट कंडीशन? डिवाइड 24 into थ्री पार्ट्स. मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? X plus y plus z is equal to 24. So that condition is what? Condition for this x y z is 24. ठीक है. अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? Using this equation, I can put value of x, I can put value of y, I can put value of z. But which is simple? Which approach is simple? X. क्योंकि अगर आप y पुट करते हो तो स्क्वायर लेना होगा, अगर आप z पुट करते हो तो क्यूब लेना होगा. ओके. सो विच वेरिएबल सेव्स आवर कैलकुलेशन? इफ आई पुट x इज इक्वल टू 24 minus y minus z. Now for this value of x you can write down your function, so it will not change the final answer. Okay, आपने बस क्या किया, थ्री वेरिएबल फंक्शन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया यूजिंग वन कंडीशन. एंड नाउ दिस यू कैन राइट इट एज 24 minus y minus z, this y square as it is, this z cube as it is, and if I multiply this you will get 24 y square z cube minus y cube z cube minus y square z raised to 4. Okay, you can check this. Now this become the function of two variable. Okay,
After that, now you can use your method. Differentiate f with respect to x, equate it to 0. Differentiate f with respect to y, equate it to 0. Calculate the stationary points. After that, calculate r, calculate s, calculate t, and check the RST values at those stationary points and decide the maxima and minima. ठीक है. So here you must get the maxima. क्वेश्चन उस हिसाब से ही है, तो आपको मैक्सिमा मिलने वाला है, एंड दैट यू विल गेट एट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 12. सो आंसर इज गिवन. ओके, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व इन अ नोटबुक. ओके, आपको ने ये भी पहले क्लियर किया है. ऑल हैव टू शो मी ऑल दिस होमवर्क क्वेश्चंस. तो आपको ये सारे नोटबुक में सॉल्व करने, ओके, थ्रू वीडियो. हर एक को वो होमवर्क आपको शो करना है. ठीक है, तो ये सारा आपको, ये सारी चीज़ें आपको सबमिशन के टाइम पे चाहिए. ठीक है, तो जितना आप लेट करोगे उतना आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो जो होमवर्क के क्वेश्चन है पीपीटी में, सारे क्वेश्चन आप, इट्स बेटर टू प्रिपेयर वन नोटबुक फॉर दैट. ओके, 100 पेजेस नोटबुक इज ऑल्सो इनफ. तो वो नोटबुक में आप सॉल्व करते जाओ. जो नहीं सॉल्व हो रहा है, जहाँ तक आपको सॉल्व हो रहा है, जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, वहाँ तक कंप्लीट करो. उसके आगे आप कभी भी लेक्चर में आप मुझे पूछो कि सर ये नहीं सॉल्व हो रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक है. ओके, आई विल गिव यू सोल्यूशन फॉर दैट. सर, यस, हाँ सर, ये क्या परत एकदा एक्शन करता का? ओके, सो दिस इज अवर गिवन क्वेश्चन. हियर वी हैव टू, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि 24 को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम. ऐसे डिवाइड करो 24 को सच दैट दिस वैल्यू x इंटू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द सेकंड एंड क्यूब ऑफ द थर्ड, दिस वैल्यू मस्ट बी मैक्सिमम. ये आपका क्वेश्चन था. इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको इस फंक्शन की क्या, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है. आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दैट मींस व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ योर मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. बट अभी प्रॉब्लम क्या है? जो मेथड आपके पास है मैक्सिमा मिनिमा की, दैट मेथड इज ओनली फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. बट यहाँ पे क्या आ रहा है? हियर वी हैव फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल. तो अगर आपको इस मेथड से जाना है, मैक्सिमा मिनिमा के मेथड से जाना है, तो आपको इस फंक्शन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा. तो कैसे करते हो आप? तो उसके लिए एक और कंडीशन गिवन है यहाँ पे. ये होगा ही अगर मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो फॉर अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, इन दैट एग्जाम्पल वहाँ पे कंपल्सरी एक और कंडीशन गिवन होगी. विदाउट कंडीशन यू कैनॉट अप्लाई दिस मेथड. तो कंपल्सरी वहाँ पे कंडीशन गिवन होगी. इस मेथड के लिए भी, अगर आप और भी मेथड चेक करो, अदर मेथड्स के लिए भी कंपल्सरी कंडीशन चाहिए. ठीक है, तो ये फंक्शन था. और कंडीशन क्या गिवन है? उन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया था कि 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. दिस वी कैन कंसिडर एज अवर कंडीशन ऑन दिस 3 वैल्यूज x, y, z. तो 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी 24. तीनों की एडिशन तो 24 आनी चाहिए. ठीक है, सो यूजिंग दिस कंडीशन आई कैन रिप्लेस x बाय दिस वैल्यूज 24 माइनस वाई माइनस जेड. देन माई फंक्शन बिकम दिस. अभी ये क्या बन गया? नाउ दिस बिकम योर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. So now you can apply this method, maximum minimum method. Any doubt? Any doubt in this part now? बोलो, clear है? This part is clear now? Please reply. This part is clear or not? So I think I have lost my network. Yeah. So can anyone tell me where we are again? Am I audible now? Students, am I audible now? Yes, sir. Can you just tell me where we are? कौन सा था हमारा लास्ट पॉइंट? आई थिंक एक क्वेश्चन आया था. हाँ, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का ही सांगत होते. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, एंड देन बस आप मुझे बोलो को कुछ डाउट्स इसमें आते हैं कि नहीं. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. डिवाइड 24 into 3 parts. So you can write 24. You have to divide this
24 into 3 parts such that the continued product of the first, square of the second and cube of the third is maximum. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, आपको 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट दिस वैल्यू इज मैक्सिमम. तो कौन से वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज करना है, इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. देयरफॉर दिस इज योर गिवन फंक्शन. जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, जिस फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, दैट बिकम योर गिवन फंक्शन. ठीक है, सो योर एफ इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फंक्शन, दिस फंक्शन कंटेन द 3 वेरिएबल्स. ओके, जो आपके पास सिलेबस में मेथड है दैट इज ओनली फॉर 2 वेरिएबल, एक्स एंड वाई के लिए आपके पास मेथड है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके तो ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन में, ओके फॉर एवरी क्वेश्चन ऑन दिस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल देयर ऑलवेज one condition, okay there always one condition is there, okay in between this in between this 3 variable x, y and z. उन सारे क्वेश्चंस में वहाँ पे हमेशा एक कंडीशन होगी, बस आपको वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करनी है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली योर कंडीशन, one extra condition on this x, y, z. Okay, so here we have to, as we have to divide this 24 into 3 parts, what this implies, x plus y plus z is equal to 24. ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन में कंपलसरी वहाँ पे एक कंडीशन होगी. आपको बस वो स्टेटमेंट या क्वेश्चन को रीड करके आपको वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है. विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, तो उससे भी आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, तो नाउ दिस इज योर कंडीशन, बट आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करना है. ये बस एक कंडीशन है, 24 को ऐसे डिवाइड करो, बट क्या मैक्सिमम चाहिए, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, ये मैक्सिमम चाहिए. सो दिस इज माई फंक्शन, दिस इज जस्ट द कंडीशन. इज दिस क्लियर? कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. और फिर इसके आगे आपको करना क्या है, आप बस क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये y z में कन्वर्ट होगा. दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व दैट एग्जांपल. आप y की वैल्यू पुट करो, ये x एंड z में जाएगा, दैट बिकम द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व दैट एग्जांपल. आप z की वैल्यू पुट करो, दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू x एंड y, दैट इज द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो. सो अगेन इट इज योर चॉइस कि आपको कौन से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, x एंड y में करना है, y एंड z में करना है कि x एंड z में करना है. बट कौन सा सिंपल लग रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो तो y का स्क्वायर आता है, अगर आप z की वैल्यू पुट करते हो तो z का क्यूब आता है. सो इट्स बेटर टू रिप्लेस x. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट रिप्लेस x बाय 24 माइनस वाई माइनस जेड. नाउ दिस बिकम फंक्शन ऑफ एक्स वाई. इस केस में क्या होगा कि x वेरिएबल आपका रिप्लेस हो जाएगा एंड दैट बिकम द फंक्शन ऑफ, सॉरी एक्स वाई नहीं, कौन से वेरिएबल में जाएगा ये, अगर आप x को रिप्लेस करते हो y and z, so here you will get a function of y and z, so that you can write it as 24 minus y and z, then y square into z cube. You can simplify this, that become 24 y square z cube and then minus y cube z cube minus y square z raised to 4. Now this become your function of 2 वेरिएबल. इसके आगे क्या करना है, डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0, कैलकुलेट स्टेशनरी पॉइंट और कंप्लीट करो. तो आपको जब आप ये सॉल्व करते हो तब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी एंड z की वैल्यू मिल जाएगी. इफ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन फॉर f ऑफ y z, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z. मतलब एक पॉइंट मिलने वाला है, एक क्या होगा वो पॉइंट आपको पता है, क्या मिलने वाला है, 8 एंड 12. तो आप जब ये सॉल्व करते हो ना, यू विल गेट वन स्टेशनरी पॉइंट 8 एंड 12. ठीक है, तो कैलकुलेट करो, इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है, कंपलसरी मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ एफ वाई जेड इज मैक्सिमम. बट आपको एक क्वेश्चन इस फंक्शन के लिए करना था, बट इस फंक्शन के लिए आपको जेड की वैल्यू चाहिए. तो जेड क्या होगा, जेड कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 8 एंड 12 से जेड कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें हाँ 24 माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी वाई एंड जेड, हाँ सॉरी एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स की वैल्यू क्या है, 24 माइनस वाई माइनस जेड. तो 24 माइनस 8 माइनस 12 दैट गिव्स यू 4. तो आपका एक्स क्या आने वाला है, 4 आने वाला है. अप्रोच समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर नाउ, अप्रोच क्लियर है? Yes, sir. ओके हाँ. एंड आई विल टेक वन मोर एग्जांपल इन अ सिमिलर वे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्यूबॉइड ओपन एट टॉप. Okay, so it is not close from here. Let me just draw this diagram. This you can treat as a cuboid and it is open at top. So I will highlight this. So this part is open, huh? This part is open. Okay, this part is open. Yeah.
it has a volume 108. So this cuboid has a volume 108, correct? Yeah. What must be the dimension so that that surface area is minimum? Okay. First, tell me if this. Okay. Let assume that length is L, breadth is B, height is H. L, B, and H. You all are aware about this notation. Can anyone tell me what is the surface area? 4 pi square, no, 6 pi square. अरे 6 LB plus 6 r square ना सर? Surface area. 2 LB plus BH plus हाँ. LB 2 into LB BH. Surface area बोल plus रहे हैं. LH. हाँ, तो ये सारे ऐड करना होगा ना. Add this area. Add this area. Okay, let me take another color. हाँ. Add this area. अभी ये भी रेड हो गया. Okay, just 1 minute. Yeah. So add this area, this area, this area. ये front का area, back का area. तो ये सारे area आप ऐड करो. You can tell me this. What is the surface area? Total surface area. Anyone? What is my total surface area here? 2LW 2lb plus 2bh plus 2L 2 lh. is to LH. हाँ Is सर this, is this clear to other students? सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? Yes, sir. फेसेस, उसमें से दो फेसेस का एरिया सेम होता है, इसलिए L इंटू बी. ये जो नीचे का फेस है, ये क्या है समझा? हाँ, L इंटू बी. तो इसका जो एरिया है बॉटम का भी एरिया सेम होगा. सो 2 टाइम्स L इंटू बी है ना. ये L इंटू एच है लेफ्ट साइड का फेस. L इंटू एच, दिस फेस इज इक्वल टू दिस फ्रंट फेस. ओके, ये दोनों सेम एरिया के फेसेस है. तो एल एच भी आपको 2 टाइम्स ऐड करना है. सिमिलरली बी एच भी आपको 2 टाइम्स ऐड करना है. सो योर टोटल सरफेस एरिया इज दिस. बट यहाँ पे क्या कंडीशन है? दैट टॉप सरफेस इज ओपन. तो क्या करना होगा? LB का नहीं होगा आई डोंट नो, सो वी डोंट नो व्हाट इज दैट, बट किसी एक सरफेस एरिया को आपको कम करना होगा. ओके, तो एल बी को मैं कम करता हूँ. सो इन दिस केस वेयर माई टॉप सरफेस इज ओपन, माई सरफेस एरिया बिकम एल बी प्लस 2BH प्लस 2LH. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट इन दिस स्टेटमेंट? अदर स्टूडेंट, आपको नहीं समझ में आता ना, आपको डायरेक्टली बोला कि नहीं समझ में आ रहा है सर. ठीक है, हाँ, ओके. एंड नाउ, तो ये तो हो गया सरफेस एरिया. ओके, ये आपका क्या है? व्हाट इज दिस? इज दिस माय फंक्शन? इज दिस माय फंक्शन? क्या मिनिमाइज करना है? क्या मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज क्या करना है? सरफेस एरिया. तो फंक्शन क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया. तो ये क्या होगा? Very good. So this is my function ना, LBH. It is in 3 variable right now. L variable, B variable and H variable. क्योंकि आपको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है. जिसको मिनिमाइज करना है उसको ही फंक्शन लेना होगा ना. So this is my function. So f of LBH is equal to this. यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया. आगे अभी इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? इट कंटेन द 3 वेरिएबल. वी कैनॉट यूज दिस मैक्सिमम मिनिमम मेथड. ओके, सो एनी हाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. सो हाउ यू डू दैट? उसके लिए कंडीशन गिवन होगी. तो क्या गिवन है यहाँ पे? अ क्यूबॉइड ओपन एट टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम 108. मींस व्हाट इज वॉल्यूम? XYZ. बट यहाँ पे LBH है एंड विच इज इक्वल टू व्हाट? 108. तो आप किसी एक की वैल्यू पुट करो. आप चाहो तो ये XYZ में भी लिख सकते हो. यहाँ पे XYZ में उन्होंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है हिंट में. आप किसी एक वैल्यू पुट करो, आप B की वैल्यू पुट करो, आप L की वैल्यू पुट करो. यहाँ पे जब आप पुट करते हो तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर आप L पुट करते हो तो B एंड H में कन्वर्ट होगा. B पुट करते हो तो L एंड H में कन्वर्ट होगा. H पुट करते हो तो L एंड B में कन्वर्ट होगा. तो इफ आई यूज दिस रिलेशन आई कैन इजिली कन्वर्ट दिस फंक्शन इंटू फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. तो 2 वेरिएबल में जो आता तो उसको सॉल्व करो, आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, लाइक से 6 एंड 3. ओके, तो ये रिलेशन यूज करके आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी. Is this clear now? Can you solve these 2 examples? Yes sir. Yes sir. Every student has to complete this example. Okay. Tomorrow randomly I will ask anyone to show me the answer of these 2 particular questions. ठीक है. तो इससे क्या होगा? इससे आपका प्रीवियस टॉपिक भी क्लियर होगा. इससे आपका फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का अप्रोच भी आपको समझ में आएगा. ठीक है. अब नहीं आ रहा है समझ, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है कल भी, तो मैं आपको इन डिटेल में सोल्यूशन देता हूँ. डोंट वरी. ओके. एंड नाउ विद दिस that you can say the all about unit number 2. Okay, and now today we'll start one of the important unit. Okay, that is the Fourier series. ठीक है.
एंड अगेन इफ यू मिस एनी सिंगल लेक्चर, अगर आज का भी लेक्चर अगर आपने मिस किया होता ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो इनिशियल का लेक्चर है, उसके बाद चलो उसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके। बट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस कोर्स, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन है दैट विल बी दी फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट हैज़ अ ट्रिमेंडस एप्लीकेशन इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट इटसेल्फ, ओके। मैकेनिकल में आप विदाउट ट्रांसफॉर्म आगे जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, these are all the extension of this Fourier series, okay. And actually the strong use of this Fourier series is what you can approximate any given function, okay. Why this Fourier series is so important? Because you can approximate any given function in terms of infinite series of sine and cosine function, ठीक है। Why this Fourier series is so important and what is meant by Fourier series? मतलब Fourier series में आप एक्चुअली क्या करने वाले हो, ओके। हियर मैथमेटिकली पहले मैं आपको बोलता हूँ, इन दिस केस वी अप्रोक्सीमेट एनी गिवन फंक्शन। अब ये एनी में भी कुछ कंडीशंस है, सो दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट यू कैन अप्लाई दिस फॉर एनी गिवन फंक्शन, ओके। कैसे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करने वाला हूँ। सो यू कैन अप्रोक्सीमेट एनी गिवन फंक्शन f of x in terms of infinite series. I think ये आपको पता होगा. Have you aware about infinite series? Yes, anyone? पता है आपको infinite series क्या है? Yes, sir. Okay. Can you tell me one example of Yes, infinite sir. series? Any one example of infinite series? Yes, to x equal to 1 plus x plus x plus x to the factorial. Yes, very good. शायद आपने टेलर मैक्लॉरेन में किया होगा इन योर फर्स्ट मैथमेटिक्स कोर्स, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, आपको पता है कि साइन एंड कोसाइन ये सबसे इजीएस्ट फंक्शन है टू वर्क ऑन, है ना, क्योंकि उसका ग्राफ आपको पता है, उनका नेचर आपको पता है। तो अगर आप किसी भी रैंडम फंक्शन को आप सिर्फ मैथमेटिकली देखो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। इनफैक्ट ई रेस टू एक्स को भी आप इसमें साइन एंड कोसाइन में अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ओके। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, नॉट द एग्जैक्ट। सो हियर वी कैन अप्रोक्सीमेट एनी गिवन फंक्शन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एनीथिंग, okay, in terms of the infinite series of sine and cosine function. That is the use of Fourier series, okay, and that can be easily programmable, okay. तो ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको किसी फंक्शन के लिए कुछ कैलकुलेशन करने, ठीक है, तो मैथमेटिकली मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं क्योंकि वैल्यूज इतने सारे रहेंगे, तो आपको उसके पीछे एक प्रोग्राम सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो फोरियर सीरीज में आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट फंक्शन, मतलब अप टू डिग्री 3 अप टू डिग्री 4 ऐसे भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट गिवन फंक्शन, एंड मतलब उस फंक्शन को डायरेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, अगर आप उसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करते हो दैट यू कैन पुट एज अ प्रोग्राम, ओके, इन योर कंप्यूटर, एंड फिर आप उस प्रोग्राम से सारे उस फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जिसकी वैल्यू मैन्युअली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो दैट वाज दिस टॉपिक इज हैज अ ट्रेमेंडस एप्लीकेशन इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक्चुअली, ओके, या, सो also in ENTC, okay. So yeah, so let me start this. So this Fourier series is a main tool used in analysis and design of many physical and engineering problems such as heat conduction, vibrations, electrodynamics and linear time invariant system, etc. Okay, these are the few applications and this I already told you, okay. This Fourier series is used in the representation of periodic signals, so that you can treat as a first condition, okay. So it is actually useful for a periodic function or periodic signals, okay, which involve the decomposition of signals in terms of sinusoidal components, okay, or the sine and cosine waves, you can say. Fourier series is a basic mathematical representation of periodic function, okay. So sound या जो आप म्यूजिक है ना 120 kbps या ये जो आपने डाउनलोड करते हो आप सारे सॉन्ग्स आप डाउनलोड करते हो 320 kbps, ओके, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस फोरियर सीरीज, ओके। तो कॉम्प्रेशन ऑफ अ म्यूजिक, ओके, ये सारी चीज़ें आप एक्चुअली फोरियर सीरीज से करते हो, ठीक है। तो जहाँ पे म्यूजिक का जहाँ पे वाइब्रेशन का पार्ट आता है, ओके, वहाँ पे भी फोरियर सीरीज आती है। सो इट हैज़ मेनी एप्लीकेशन, ओके, इन ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, ठीक है। सो इन दिस
particular unit. Okay, so we'll try to learn at least mathematically how this Fourier series is calculated, Fourier series of any given function. Okay, so Fourier series are in a certain sense more universal than this Taylor series. Okay, that you already learned in your first engineering course. Okay, Taylor series also by Taylor series also you will get the expansion of that given function in power of x minus a, ये भी आपने पार्ट उस टाइम पे लर्न किया होगा. Okay, now but before we actually start before defining that Fourier series, let us first understand the few definitions regarding the periodic function, even function, odd function and so on. Okay, let us first complete the preliminaries for this topic. Okay, so first is periodic function. Okay, so can anyone tell me the examples of periodic function? कौन कौन से periodic function आपको पता है, बोलो. sin x, sin x cos x. Trigonometry. हाँ, और No, sorry. now skip the trigonometric part. चलो दो हो गया इनफ है trigonometric. और ये सारे trigonometric function तो periodic है ही. Okay, with for certain interval. Any other function which is periodic? Okay, these are the most famous examples. Okay, in a periodic function. Okay, can you tell me, अभी ये इसका आंसर आ जाएगा. Can you tell me a function which is a non-periodic? There are e raised to x, Log x. log x, और ज़्यादातर नॉन पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट, x क्या है, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? x इक्वल टू x, ये लाइन पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक. एक्स स्क्वायर है ना, ये सारे नॉन पीरियोडिक की फंक्शन है. सो हाउ यू चेक मैथमेटिकली, दिस इज माय क्वेश्चन, हाउ यू चेक मैथमेटिकली वेदर दिस गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट? अभी ग्राफ से आपको पता है. ओके, पीरियोडिक का ग्राफिकली मीनिंग क्या है? दैट function repeat itself after a certain interval. That is the meaning of periodic function graphically. That function repeat itself after a certain interval. For example, if I talk about sin x, okay, so I know the graph of sin x. It takes value 0 for 0, then it goes like this. Okay, on this side also. सारा ज़्यादातर हमें sin and cosine पे stick रहना, because they are the only two periodic function that you aware about this. Okay, now this becomes 0. This is what? ये क्या है? This is 2 pi. 2 pi. What is this point? Pi. Pi. Then 3 pi, 4 pi. ठीक है, सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. This is minus pi. ठीक है, minus 2 pi like this. Okay, तो आपको समझ में आ रहा है 0 to. ओके, तो ग्राफ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हेन आई गो फ्रॉम 0 to 2 pi. ठीक है, हाँ. सो दिस सेम नेचर इज ऑलरेडी रिपीटेड हियर. तो जो पार्ट आपका रिपीट होता है ग्राफ में, ओके, सो दैट इंटरवल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द interval of that given periodic function. Or simply, if a function repeat itself after a certain interval. तो आप देखो इस इंटरवल में जो ग्राफ आ रहा है, सेम ग्राफ आपको आगे के इंटरवल में भी दिखाई दे रहा है. सो दिस फंक्शन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल. देखो सेम, तो ये सेम रिपीट होता है सर्टेन इंटरवल में. देयरफॉर वी कॉल दिस फंक्शन एज अ पीरियोडिक फंक्शन. इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ये ग्राफिकली सबको पता है, आई नो दैट. ठीक है, हाउ यू चेक मैथमेटिकली? कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट? हाउ यू चेक मैथमेटिकली? एनीवन? सर f of x को f of x plus t डालेंगे, t तो पीरियड है उसका. हाँ, तो अगर t वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन और वो अगर इंडिपेंडेंट रहेगा x के, तो वो पीरियोडिक फंक्शन. वेरी गुड. ओके, आपने एक्चुअली डेफिनेशन ही बोल दी. ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या था? इसने भी क्या बोला? इफ आई रिप्लेस अ फंक्शन बाय f of x by f of x plus t, okay, and if I get that same function again, okay, if I get that same function again, then we call that function as the periodic function. Okay, so for example, if I talk about this e raised to x, okay, if I want to check if this e raised to x is periodic or not, okay, so let us consider f of x equal to e raised to x. Okay, and now let assume the t to be period of this function. Okay, so that implies f of x plus t must be equal to f of x. If I want to say that e raised to x to be periodic, then that implies what? What is the value of f of x plus t if I take f of x equal to e raised to x?
what is value of f of x plus t? E raised to Just x into e raised plus to t t. is equal to e raised to x. Okay, so for which value of t this is possible? T is equal to 0. T equal to 0 only, therefore there does not exist, and t equal to 0 is not the period. Okay, so therefore there does not exist any t for which f of x plus t equal to f of x, therefore this e raised to x is not a periodic function. This is the mathematical reason. Okay, but if I consider the sin x function, okay, so for sin x, if I replace this function by sin x, so for sin x I have to just find a t which satisfies this condition, f of x plus t is equal to sin x, f of x plus t is equal to f of x. So can you tell me a t value of t for Pi. Huh? 2 and 5. Yeah, implied. Can I take t equal to pi? Pi? No, sir. But if I put t equal to 2 pi, correct? If I put t equal to 2 pi, sin of x plus 2 pi become sin x. Agree. Can we put 4 pi? Yes, sir. So whether 4 pi is the period? Yes, sir. So how? No, sir, 2 pi is the period. 2 and 5 is the So in general, 2n pi is the period. Okay. So actually there are infinitely many periods. Okay, corresponding to this sin x and cos x. So what is my smallest period? What is my smallest period? 2 pi के पीछे आप आ सकते हो क्या? You can't take pi. You can't take any previous value of 2 pi. ठीक है? It means what your smallest period is 2 pi. 2 pi के पीछे से कोई value नहीं है. That you can treat as a period of this given function which satisfies this condition. ठीक है? So that period has a specific name. Can you tell me that? Anyone? किसी को पता है कुछ? अगर आपने टॉपिक लर्न किया है तो that smallest period has a specific name. That is called as the fundamental period. That is called as the fundamental period. Is this clear? क्या क्या एक्सप्लेन किया समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now let me erase everything. Okay, आपको अभी नीचे का पार्ट समझ में आएगा. This is the definition. If I want to say that t to be the period of that function, just check this condition mathematically कि x plus t और equal to f of x ये दोनों equal आते हैं कि नहीं? नहीं आते, then it is not a periodic function. Okay, if there exists one value of t, okay, which gives me this, then it become periodic function. Okay, अभी एक और example मैं आपके knowledge के लिए देता हूँ. It is not a part of our syllabus. Okay, can you tell me e raised to ix, is this periodic function? Is this periodic function? So I have to check x plus t is equal to f of x. So yeah, tell me what we have to write here. E raised to I in bracket what? I is plus t. T is equal to e raised to ix. So this I can write it as, this is not a part of your syllabus. तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. it is equal to ix. So can you find t, okay, which satisfies this two LHS and RHS? Can you tell me t? 0. 0 is not a period. Don't go for 0. अगर आप एज्यूम करो ना कि अगर आपने यहाँ पे t इक्वल टू 0 किया तो वो वैसे भी f of x प्लस t इक्वल टू f of x होने वाला है ना फॉर ऑल t. सो t नेवर 0, दैट पीरियड नेवर 0. तो 0 के लिए तो वैसे भी वो होगा. सो मतलब फंक्शन इक्वल टू फंक्शन लेके क्या मिलेगा आपको? या सो t नेवर 0. जब आप पीरियड बोलते हो ना, सो दैट पीरियड नेवर 0. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. सो मुझे पता है आपको शायद नहीं पता होगा बिकॉज यू But a complex number or a यस इट्स अ कॉम्प्लेक्स z is equal to पीरियड आपका रियल है इसका. बट ओके sin theta ने n cos theta में बट ओके इसको मैं कैसे करता हूँ? कैन यू टेल मी हाउ यू स्प्लिट दिस? हाउ यू स्प्लिट दिस? Yes, sir. E raised to ix into e raised to ix. ओके वेरी गुड. अभी आपको क्या करना है? जस्ट फाइंड अ t विच गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट टू बी 1. अभी और क्लियर होगा. जस्ट टेल मी अ t विच गिव्स द वैल्यू By So, minus है. माइनस नहीं, ये आया. अभी उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ e raised to ix या e raised to i theta. व्हाट इज दिस? इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नॉट द रियल पार्ट. सो व्हाट इज e raised to ix?
व्हाट इज रेस टू आई एक्स? ये आपको अभी के कोर्स में नहीं है, इंजीनियरिंग। cos I theta plus sin theta plus n cos theta. इट इज cos x प्लस आई साइन x। ओके, ये आपको अभी मैं दे देता हूँ, मुझे पता है आपको नहीं पता बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। cos x प्लस आई साइन x, सो cos x इज द रियल पार्ट एंड sin x इज द इमेजिनरी पार्ट। नाउ फ्रॉम दिस सारी चीज़ आपके सामने, कैन यू टेल मी अ t which gives me the value of e raised to it equal to 1, smallest value I want? Can you tell me a t? Pi by 2. Pi by 2. If I put t equal to pi by 2, then e raised to it की वैल्यू क्या होगी? e raised to it की वैल्यू क्या होगी? हाँ, e raised to I by 2 is what? Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. हाँ, yes. क्या? What is cos pi by 2? Zero. 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 I sin. What is sin pi by 2? 1. तो क्या मिलेगा? e raised to I square मिलेगा। e raised to I square e raised to minus 1. Again it is not 1. I want 1. तो ये 1 आने के लिए IT की वैल्यू क्या चाहिए? मतलब ये सॉरी ठीक है, ओके हाँ, ये 1 चाहिए टोटल। या बोलो बोलो बोलो, यू कैन वर्क लाइक दिस, करेक्ट अप्रोच है आपका, यू कैन वर्क लाइक दिस, वेरी क्लोज टू योर आंसर। चेक दिस, cos pi प्लस आई साइन पाई। cos pi क्या होता है? -1 ना? Correct me if I wrong. So that gives me -1. No, I want 1 only. I want 1 only. अभी ऑब्वियसली आप आंसर पे ही जाने वाले हैं। 2 pi. वेरी गुड। अभी चेक करते हैं 2 pi. So that gives me cos 2 pi प्लस आई साइन 2 pi. cos 2 pi 1 होता है and sin 2 pi 0 होता है। You will get 1. So what is my smallest value? आपने मतलब ऑलरेडी स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया था, पाई बाय 2 वर्क नहीं करा है, पाई भी वर्क नहीं करा है। सो व्हाट इज माय स्मॉलेस्ट वैल्यू? 2 pi. सो द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 pi एंड इट्स अ रियल पीरियड। आप देखो फंक्शन कॉम्प्लेक्स है बट पीरियड रियल है, जैसे दैट इट्स अ स्पेशल फंक्शन। ओके, 1 मार्क के लिए अगर नहीं आएगा बट इट्स अ फेमस एग्जाम्पल, यू कैन रिमेंबर दिस। चलो एट उससे ये तो क्लियर होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं पीरियड। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इफ t is the period, you can multiply this by any natural number or integer, okay, n, that also become a period, okay, so n into t is also period। जैसे 2 pi period था, है ना, this is your t, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2t that become 4 pi, it is also period। अगर आप 3t से मल्टीप्लाई करते हो so 6 pi, it is also period। so n into t is also period of that given function, okay, this is clear now। yeah, एक और रिजल्ट है which is very important for MCQs कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, ओके, ये फंडामेंटल पीरियड का मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स अ स्मॉलेस्ट पीरियड। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा? दैट बिकम योर फंडामेंटल पीरियड। इन जनरल वी ऑलवेज कंसीडर द फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ गिवन फंक्शन, है ना। जैसे मैं अगर बोलता हूँ साइन एक्स है तो आपका ऑब्वियसली आंसर आता है कि साइन एक्स हैज अ पीरियड 2 pi। आप कभी ये नहीं बोलते कि साइन एक्स हैज पीरियड 4 pi, क्योंकि आपको फंडामेंटल पीरियड पे ही फोकस करना है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड इज टी, देन एफ ऑफ ए एक्स हैज अ पीरियड टी अपॉन मॉड ए। अब इसका एप्लीकेशन क्या आपको मैं बोलता हूँ। ओके, आप बोलो साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया, साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ हैज पीरियड 2 pi। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x एंड cot x? pi sec x and cosec x। हाँ, sec x and cosec x, what is the fundamental period of this? हाँ, 2 pi. 2 pi, क्योंकि sec is nothing but 1 by cos, तो cos ही आ रहा है ना उसमें, तो cos का तो 2 pi है, तो sec का भी 2 pi होगा। cosec में 1 by sin, sin आ रहा है बट sin का 2 pi, तो इसका भी 2 pi होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या आप देखो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड और द स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ tan 4x यूजिंग दिस रिजल्ट? करना पड़ता है अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स का पीरियड है
ओके तो आप एफ ऑफ एक्स का कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? एफ ऑफ एक्स का कैलकुलेट करते समय एफ ऑफ एक्स के पीरियड को ए से डिवाइड करो। तो tan 4x का पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? tan x का पीरियड कैलकुलेट करो, tan x का पीरियड कैलकुलेट करो एंड डिवाइडेड बाय दैट नंबर 4। बट tan x का पीरियड क्या है? यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है पाई डिवाइडेड बाय 4। सो tan 4x का पीरियड क्या हो गया? पाई बाय 4। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin 4x? sin x pi divided by 4 pi by 2. So pi by 2 is also become a period, but of what? Sin 4x. तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करते हो ना, ये ग्राफ ऐसे कॉम्प्रेस होता जाता है। sin x का अगर sin x का ग्राफ यह आता है ना, तो sin 2x का और कॉम्प्रेस होगा, ठीक है, sin 3x का और कॉम्प्रेस होगा, sin 4x का और कॉम्प्रेस होगा, लाइक दिस, क्योंकि पीरियड कम होता जा रहा है ना आपका। 2 पाई से स्टार्ट किया था, पाई बाय 2 हो रहा है, ओके। सो जैसे आप रिड्यूस करोगे ना, वैसे वैसे ग्राफ आपका कॉम्प्रेस होता जाएगा। सो दैट ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली लर्न फ्रॉम दिस पीरियड, ना, फ्रॉम दिस फंडामेंटल पीरियड, ओके। यू कैन डायरेक्टली you will get the idea of that graph of that given function, okay. Yeah, so these are the basic things that you need. Sin, cos, sec, cosec has period 2 pi, tan, cot has period pi. So these are the hyperbolic function. Have you learned this part somewhere in your 11th, 12th or in M1 first course of mathematics? हाँ, क्या क्या पता आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में? Anyone can tell me this? What do you know about this hyperbolic function? It can be represented by e raised to theta minus e raised to minus theta. आणि त्याचं डिफरन्शिएशन तेच म्हणजे निगेटिव्ह by 2, करेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा। सो अगर आपको नहीं पता है ज़्यादा कुछ साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज e raised to I theta plus e raised to minus I theta by 2. So just try to remember these two definitions. That is enough, okay. And one more definition which I already which we already discussed here. So e raised to I theta is actually what? Cos theta plus I times sin theta. This is the famous theorem. It is called as Euler's theorem. इतना अगर आपको पता है तो इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ हमें इस टॉपिक से नहीं चाहिए। एंड e raised to z, okay, has a period, e raised to z is a complex number, हाँ, so e raised to z has a period 2 pi i। कैसे आप चेक करो? जब आप e raised to z में 2 pi i ऐड करते हो ना, you will get that same function, okay. You can check this because this become e raised to z into e raised to 2 pi i and this become e raised to z into e raised to 2 pi i की वैल्यू क्या होगी? What is e raised to 2 pi i? I थीटा से कंपेयर करके बोलो, what is value of e raised to 2 pi i? हाँ, Plus I sin 2 pi and cos 2 pi is 1, sin 2 pi is 0. So we'll get that e raised to z. That is nothing but e raised to z. ठीक है, तो e raised to मतलब ये क्या था? This is f of z plus t is equal to f of z. ये आपको मिल रहा है, therefore e raised to z is a periodic function. Okay, I don't want to go in detail about this proof. Okay, क्योंकि पाई आई भी आप याद रखो, कैसे रीज़न है आपको पता है इसका सबका भी, ओके। हर एक केस में क्या करो? दैट फंक्शन प्लस टी मतलब ये वैल्यूज, ओके। अगर ये आप सॉल्व करते हो, अगर आपको फिर से एफ ऑफ जेड मिलता है, इसका मतलब वो क्या बन गया? दैट बिकम द पीरियोडिक फंक्शन विद दैट पीरियड टी, ठीक है। सो मैथमेटिकली यू कैन चेक ऑल दिस वैल्यूज, ओके। इन डाउट इन दिस पीरियोडिक पार्ट तो आपको 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए पीरियड आ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, साइन कॉस, साइन 3x, साइन 4x, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ओके। सो एनी डाउट इन दिस पार्ट नाउ? पीरियड का पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एंड नाउ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन मतलब फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो इसमें आप x प्लस टी कंसिडर करो या एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो, यह हमेशा इक्वली आने वाला है। सो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट विल नॉट, मतलब उसमें वैल्यू चेंज ही नहीं होती ना, तो आप x को x प्लस टी से भी रिप्लेस करते हो तो आपको फिर से एफ ऑफ एक्स से मिलने वाला है, तो देयरफॉर एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ओके। सो आई थिंक दिस इज इनफ अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ओके, आई थिंक टाइम हो गया क्या? ओके, सो वी नीड टू स्टॉप हियर टुडे। Sorry for the extension, I really don't know. Yeah,
You can put your roll Sir. number in chat box. Yes. सर त्या होमवर्कचा क्वेश्चन रन करतो व्हॉल्यूम